السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ امید ہے آپ سب لوگ خیریت سے ہوں گے۔ میں آپ کے سامنے چند باتیں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ پہلے تو قرآن کی آیت ہے، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم، یا ایھا الذین آمنوا لا تقدموا بین یدی اللہ ورسولہ واتقوا اللہ ان اللہ سمیع علیم۔ اے لوگوں جو ایمان لائے ہو، اللہ اور اس کے رسول سے آگے نہ بڑھو، اور اللہ سے ڈرو، اور اللہ سننے والا اور جاننے والا ہے۔ اس آیت کے تحت جو بھی مسلمان اللہ اور اس کے رسول سے آگے بڑھتا ہے وہ مجرم ہے، وہ مجرم ہے۔ اب کچھ دن پہلے بریلویوں نے یہ نعرہ لگایا تھا کہ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ اب اس سے ریلیٹڈ کیا عقیدہ ہونا چاہیے ہمارا کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے جنت کی گارنٹی دی ہے 10 اصحاب کو ایک مجلس میں بھائی نے، اور باقی صحابہ کو کچھ موقع پہ گارنٹی دی ہے، لیکن سارے اصحاب کو گارنٹی دی ہے جنت کی، یہ کہیں پر نہیں ہے حدیث میں موجود، تو اس کے لیے دلیل چاہیے ہوگی۔ لیکن اب ہم سب کو کیسے کہہ سکتے ہیں یہ کنفرم جنتی ہیں یا نہیں ہیں؟ تو اس سے ہم حدیث کی طرف جاتے ہیں اور حدیث کو دیکھتے ہیں، حدیث کیا کہتی ہے اس معاملے میں۔ تو صحیح بخاری کی حدیث ہے 7003 نمبر۔ عثمان بن مظعون ایک بوڑھے صحابی ہوتے ہیں جن کا انتقال ہو جاتا ہے، تو ایک بوڑھی خاتون ہوتی ہیں، وہ کہتی ہیں عثمان کے لیے تو جنت ہے، عثمان کے لیے تو جنت ہے۔ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم کہتے ہیں کہ تم کو کس نے بتا دیا؟ تو آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں روکا کہ تم کو کس نے بتا دیا کہ ان کے لیے جنت ہے؟ تو اس سے ہمیں کیا پتہ چلتا ہے کہ جنت کی ٹکٹ ہم اپنی طرف سے کسی کو نہیں دے سکتے، اللہ اور اس کا رسول دے سکتے ہیں، لیکن ہم اپنی طرف سے کسی کو جنت کا ٹکٹ نہیں دے سکتے۔ اب یہ جو بریلوی جماعت ہے، یہ جو جنت کی ٹکٹ بانٹ رہے ہیں اپنے آپ کو اور صحابہ کرام کو اور سارے بریلویوں کو، تو یہ کس بنیاد پہ بانٹ رہے ہیں؟ کیا ہے ان کا عقیدہ؟ کیا ان کے پاس کوئی دلیل ہے؟ آئیے سنتے ہیں، ہمارے پاس ریکارڈنگ موجود ہے، اس ریکارڈنگ میں سنتے ہیں۔ ایک بریلوی عالم سے ہماری بات ہوئی ہے، اس سے ہمیں پتہ لگ جائے گا کہ کیا ان کے پاس کوئی ثبوت ہے، کوئی دلیل ہے یا نہیں، تو اس سے پتہ لگے گا۔ اور ہاں ایک بات اور، یہ جو بریلوی حضرات ہیں تو یہ کہہ رہے ہیں بخاری مسلم ڈائریکٹ نہیں پڑھنی چاہیے، عام مسلمان کے لیے نہیں ہے۔ اس میں آڈیو آپ سنیں گے تو اس میں آگے وہ کہتے ہیں لاسٹ میں کہ بخاری مسلم مسلمانوں کے لیے نہیں ہے، عام یہ علماء کے لیے ہے، پڑھنے کے لیے۔ بندے اس سے گمراہ ہو جائیں گے۔ تو اس سے کون گمراہ ہوگا؟ جس کے عقیدے بخاری مسلم کے خلاف ہوں گے۔ تو جیسے کوئی بخاری مسلم پڑھتا ہے، اس میں اور وفادین کی حدیث موجود ہیں، ان کے بریلویوں کے عقیدے اس میں ہے نہیں، تو یہ ان جیسے لوگ ہی اسے پڑھ کے جو ہے گمراہ ہو جاتے ہیں کہ بھئی اب وہابی، یہ تو سارے وہابی والے عقیدے ہیں، تو وہ تو بنتے نہیں ہیں وہ، تو اس لیے وہ پھر دوسری طرف نکل جاتے ہیں۔ تو ایسے لوگ ہی گمراہ ہوتے ہیں، جیسے یہ بریلویت یہ پڑھتے ہیں اگر بخاری مسلم، تو اس لیے انہوں نے ٹوٹکا ہے ان کا کہ بھئی پڑھنے نہیں دینا، نہ قرآن پڑھنے دینی ہے مسلمانوں کو، نہ حدیث پڑھنے دینی ہے مسلمانوں کو، اس لیے منع کرتے ہیں۔ اس طریقے کا یہ جو ہے دین کے ساتھ کھلواڑ کر رہے ہیں اور دشمنی کر رہے ہیں ایک طریقے کی۔ اب آپ یہ آڈیو سنیں، ٹھیک ہے؟ کرنی تھی مجھے جو کس موضوع پر جو آپ نے چھیڑا تھا، کیا چھیڑا تھا آپ سے بتاؤ تو۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی۔ ہاں تو کیا تم صحابہ کرام کو جنتی نہیں مانتے؟ ہم تو مانتے ہیں الحمدللہ۔ پھر جھگڑا کس بات کا؟ جھگڑا اس بات کا، تم سب کو ہر صحابی نبی جنتی جنتی، یہ کس نے گارنٹی دے دی تمہیں؟ اللہ نے دی ہے، اس کے نبی نے دی ہے۔ ایک منٹ رک جاؤ جی، پہلے تو میرے کو بتاؤ، تم صحابہ کرام کو جنتی مانتے ہو کہ نہیں مانتے ہو؟ کل بھی یہ بتا دو۔ ہم تو مانتے ہیں، لیکن مانتے ہو تو عمل کے مطابق نہیں، عمل کا ٹھیکہ سنو، صحابہ کرام کے عمل کا ٹھیکہ اللہ نے تمہیں نہیں دیا ہے۔ ہم تو کنفرم جنتی انہیں مانتے ہیں جس نے، نہ مرزا کو دیا ہے۔ ہم تو کنفرم جنتی انہیں مانتے ہیں جنہیں اللہ کے نبی نے گارنٹی دی ہے 10 صحابہ کو۔ آپ کنفرم جنتی سب کو کیسے گارنٹی دے رہے ہیں؟ اچھا ان کے علاوہ کسی صحابی کو جنتی نکال لیا کرے؟ وہ اللہ تعالیٰ فیصلہ کرے گا، آپ کون ہوتے ہیں فیصلہ کرنے والے؟ یہ جنت کی ٹکٹ دینے والے آپ کون ہیں؟ ارے یار میرے کو تم یہ بتاؤ، قرآن کریم میں جو ہے اللہ تبارک و تعالیٰ نے سابقون اولون کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ بالکل کیا، اور ان کی اتباع کرنے والوں کا ذکر کیا ہے، ٹھیک ہے؟ ہاں سچی اور اتباع کرنے والے کا ذکر کیا ہے۔ اور دوسری بات، جن 10 صحابی کا تم ذکر کر رہے ہو نا، ان کے اندر حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بھی ہیں، ٹھیک ہے؟ ٹھیک ہے، ٹھیک ہے جی۔ اب حضرت طلحہ اور حضرت زبیر بقول تمہارے امام کے
उस इमाम के जो कहता है कि नबी अलैहिस्सलाम ने मुनाफिक का जनाजा अल्लाह के हुक्म के खिलाफ पढ़ाया था। रुको कुरान में जो आया है कि जन्नत वाला जो आप कह रहे हैं सूरह तौबा में, नहीं मैंने जन्नत वाला नहीं कहा है, मैंने ये कहा है कि कुरान में देखो साबिकून का जिक्र है, अफदून का जिक्र है, ठीक है, मुहाजिरीन का भी जिक्र है, ठीक है, और जिन लोगों ने उनकी इत्तिबा करी है उनमें मुनाफिक का भी जिक्र है, इत्तिबा करी है, उनमें मुनाफिकों का भी जिक्र है। कौन है मुनाफिक कौन है? उसमें ये भी आया है नबी उन्हें आप नहीं जानते। अच्छा तो मुनाफिकीन है कौन? अब अल्लाह तो मना कर रहा है नबी तुम उन्हें नहीं जानते, फिर तुम कैसे जान जाओगे? नहीं तो अल्लाह जब कह रहा है कि मुनाफिकीन है तो इसमें इस बात की नफी कहाँ से हो रही है कि उन मुनाफिकीन में तुम सहाबा किराम की जात को मुराद होगी? अल्लाह के नबी तो उन्हें भी सहाबा में गिनती करते थे। अल्लाह के नबी कहाँ गिनती करते थे बताओ? अल्लाह के रसूल ने कहा कि हाँ जी मेरे सहाबी भी मुनाफिक है, और ये जो फिर हदीस है माँ अना अलैहि वो हदीस फिर ये कहाँ जाएगी? वो हदीस कहाँ जाएगी जो सहाबी ने मतलब आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की चुगलखोरी कर दी थी और फिर हजरत अली को भेजा था वो खत निकलवाने के लिए, तो उसको हजरत उमर कह रहे थे मैं इसका गर्दन काट दूं, तो अल्लाह के नबी ने मना किया। एक मिनट रुको ब्रेक मारो। एक सहाबी ने चुगलखोरी करी थी। जी। अच्छा चुगलखोरी किस मसले में करी थी? जंग के मसले में की थी ना, जंग के मसले। नहीं जंग मुझे बताओ तो वो क्या वाकया था? वाकया ये था कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जो तकदीर की थी उनने काफिरों को जाके बता दी थी, ठीक है कि मुझे छोड़ देना मेरे परिवार को, बस मैं तो यही चाहता हूँ इस बदले में। अच्छा चलो ये बताओ मुझे, जिन सहाबी का तुम जिक्र कर रहे हो वो जन्नती है कि नहीं है? नबी ने कहा उमर छोड़ दो, लोग कहेंगे कि मोहम्मद अपने सहाबा को कत्ल कराता है। पहले मुझे बताओ जिन सहाबी का तुम जिक्र कर रहे हो जी वो सहाबी जन्नती है कि नहीं है? हम तो जन्नत की गारंटी बांट नहीं रहे ना, हम तो जन्नत की बांट नहीं रहे मेरे भाई। नहीं आप बांट रहे हैं, छोड़ दो। अरे यार ये जाहिल वाली बातें मत करो, जिनका तुम जिक्र कर रहे हो ना, आप कह रहे हैं ना जिनका तुम, अरे यार मैं तुमसे कह रहा हूँ आप कह रहे हैं ना सहाबा जन्नती है। अरे मेरे भाई मैं तो कह रहा हूँ कि जितने भी सहाबा हैं, सहाबा इस्तिलाही सहाबा जिन्हें कहा जाता है, समझे, वो सारे जन्नती हैं। और रही बात मुनाफिकीन की, जिनको तुम मुनाफिक कह रहे हो, तो मुनाफिक सहाबी होता ही नहीं है। ठीक है, तो फिर ये हदीसें कहाँ जाएंगी बुखारी मुस्लिम की? कौन सी हदीस? ये बुखारी की 42-34 हदीस है। पहली चीज तो ये है कि तुम लोग जो है ना बुखारी मुस्लिम से बने पड़े हो अंधभक्त में। बुखारी मुस्लिम गलत है? तुम्हें ये नहीं पता है कि मैंने तो नहीं कहा बुखारी मुस्लिम गलत है, तो फिर अंधभक्त कैसे हो गए? लेकिन हाँ अंधभक्त ऐसे हुए कि तुमने सारा दीन सिर्फ बुखारी मुस्लिम पर ही मौकूफ कर दिया है। तुमने पहली बात तो झूठ बांधा है, उसकी हम बात करी तो झूठ बांधा बुखारी की हदीस पे कि वो जो गुलाम था तुमने, हाँ ठीक है, वो जो गुलाम था वो मुसलमान नहीं था ना सहाबी था। नहीं मैंने तो कहा ही नहीं, आपने कहा था वो सहाबी नहीं था। हदीस में सहाबी लिखा है, तो जो सहाबा के साथ में रहे अल्लाह के नबी को देखे वो कौन है? साथ में छोड़ो, जिसे सहाबा जन्नत की गारंटी दे, शहादत की, प्यारे मेरे को तुम ये प्यारे जिसे सहाबा शहादत की गारंटी दे तो वो कौन होगा? मुशरिक को तो देंगे नहीं, मुशरिक को तो देंगे नहीं। चलो ठीक है मुशरिक को तो नहीं देंगे या मुनाफिक को तो नहीं देंगे गारंटी? अरे मेरे भाई अपने सवाल कर लो पहले, फिर मैं बोलूं। मुझे सवाल क्या, पहले ये हदीस आपने पूरी पढ़ी है 12-42? नहीं तो उस हदीस में ये कहाँ लिखा है कि जिसका इंतकाल हुआ वो सहाबी? उस हदीस में ये नहीं लिखा। मैं अभी रुको आपने हदीस ढंग से पढ़ी हो तो आपको समझ आया है बिल्कुल सारी। बिल्कुल पढ़ा रहा हूँ, रुको 1 मिनट रुको। हदीस नंबर बताना 42-34 है ना? 42-34 है, बुखारी की हदीस है। हाँ खोलो, उसमें क्या लिखा है? सहाबी था कम से एक तीर आकर उनको लगा, लोगों ने कहा मुबारक हो शहादत। क्या मुबारक हो? मुबारक हो, ठीक है। शहादत किसको होती है मुबारक? किसको मुबारक होती है? किसको होती है? जो मुसलमान हो सहाबा हो उसी को तो मुबारक होगी। शहादत मतलब जन्नत ही है। तो तुम ये मानते हो कि रुको 1 मिनट, हदीस खत्म नहीं हुई अभी। लेकिन आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया हरगिज़ नहीं, रुको, आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि हरगिज़ नहीं, उस जात की कसम जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चादर उसने खैबर में तक़सीम से पहले माल गनीमत से चुराई थी वो इस पर आग का शोला बनकर भड़क रही है। ये सुनकर अब देखो ये जो सहाबा हैं इन पर आग का शोला बनकर भड़क रही है। अब तुम कह रहे हो ये सहाबा नहीं है। सुनो 1 मिनट, जस्ट मिनट। उस हदीस में क्या ये लफ्ज़ है कि जिसको तीर लगा था वो सहाबी है? रुको ये आगे आ रही है, आगे बात आ रही है। मुझे बता दो ना, बताओ पूरी बात तो सुन लो पहले। हाँ बताओ। अरे वो लफ्ज़ बताओ, हदीस में है कि नहीं है? अरे मैं बता तो रहा हूँ, पूरी हदीस तो बताओ। कब बताओगे? अभी बताऊंगा बिल्कुल। तो उस जात की जिसके हाथ में मेरी जान है, जो चादर इसने खैबर के मौके पे चुराई थी, ठीक है, वो इस पर आग की शोला बनाकर
भड़क रही है, ठीक है। ये सुनकर एक दूसरे सहाबी या एक या दो तस्मे लेकर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की खिदमत में हाजिर हुए और कहा कि ये मैंने उठा लिए थे। नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि ये भी जहन्नम का तस्मा बनता। ये अल्फाज पे गौर करो। एक सहाबी जिन्होंने तस्मा उठा लिया था वो वापस गए अपने घर, उन्होंने लाके जमा कराया और अल्लाह के नबी ने क्या कहा, ये भी जहन्नम का तस्मा बन जाता जैसे उनकी चादर बन गई आग का तोला। आप हदीस को नहीं समझते हैं पूरी तरीके से? पूरी बात हो गई पूरी? होगी, पूरी बात हाँ, बिल्कुल पूरी हो गई। इससे क्या समझ रहे हैं आप? अब इसमें तुम्हारी कोई बात बाकी तो नहीं है? मेरी इस हदीस में कोई बात बाकी नहीं है, मैंने बता दिया जो हदीस में अल्फाज है। इस हदीस में पहली चीज तो ये तुम्हें ये समझनी होगी अच्छे तरीके से, जरा होल्ड करना है यार, हाँ देखो सुनो। पहली चीज तुम्हें ये चीज समझनी होगी कि सहाबा किराम रिज़वानुल्लाहि तआला अन्हुम अजमईन जो थे वो इंसान थे, ठीक है, इंसान थे, वो फरिश्ते नहीं थे, नबी नहीं थे, ठीक है, ठीक है, ठीक है ना। हाँ, उनसे उनकी जिंदगी में जो गलतियां वाक़ई हुई हैं, ठीक है, ठीक है, अल्लाह तबारक व तआला ने उन तमाम से वादा फरमाया है उनकी माफी का। अल्लाह ताला उन्हें माफ करके उन्हें जन्नत में दाखिल फरमाएगा। तो ये अहले सुन्नत का अकीदा है, ये अहले सुन्नत का अकीदा है। सुन लो पहले तसल्ली से। अरे मेरे प्यारे पहले सुन तो लो बात को, बिल्कुल तसल्ली से पहले बात समझो। देखो सहाबी रसूल जितने, पहली चीज सहाबी अलग है, मुनाफिक अलग है, ठीक है। अब जैसे कि तुमने बोला कि वो जो एक सहाबी जो तस्मा लेकर आए और अल्लाह के रसूल ने फरमाया कि ये भी जहन्नम का वो क्या था, ये क्या जहन्नम का तस्मा बनता, ठीक है, ठीक है जी। तो उन सहाबी रसूल ने जो है तस्मा लाकर दे दी, ठीक है। इससे तुम ये नतीजा निकाल रहे हो कि अगर वो वापस नहीं करते तो उनको जो है जहन्नम का तस्मा उनके गले में डाल दिया जाता, या गले में या जो भी तरह होती उनके मुताबिक उनको दी जाती, ठीक है। तुम ये नतीजा निकाल रहे हो। ऊपर वाली जो सहाबी है जिनको तीर लगा मिदम नाम के जो गुलाम है, तो उनका गुलाम, एक मिनट सुनो, इस हदीस में मेरे को ये बताना, वो जो मिदम नाम के जो गुलाम था वो पेश किसने किया था, वो किसने हदिया दिया था आका अलैहिस्सलाम को? वो पेश किया था देखो जरा, वो बनी जुबाब के एक सहाबी ने आपको हदिये में दिया था। बिल्कुल, वो एक सहाबी ने हदिये में गुलाम दिया था, वो गुलाम था, ठीक है, वो गुलाम था, तो गुलाम के मुसलमान सहाबी नहीं हो सकता? अरे फिर वही बात है यार, मैं तुमसे क्या कह रहा हूँ, आपने कहा गुलाम था वो। अरे मेरे भाई थोड़ा सा सब्र रखो, बौखलाहट में मत जाओ, समझे? ना बौखलाहट में नहीं हूँ मैं तुमसे ये कह रहा हूँ। देखो सुनो, जैसा कि मैंने बताया तुम्हारा जो झगड़ा है ना वो इस बात पर है, तुम कहते हो सारे सहाबी जन्नती नहीं है, हम कहते हैं सारे सहाबी जन्नती है ना। मैं ये नहीं कह रहा सारे सहाबा जन्नती नहीं है, मैं पता है क्या कह रहा हूँ, तो अमल के मुताबिक सजा होगी वो काट के जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह। अच्छा चलो ठीक है, तो ये तुम मानते हो सबर, तुमने अपने मुंह से भी एक बात बोली है कि जो भी सहाबी हैं वो अपने अमल की सजा काट के जन्नत में जाएंगे इंशाल्लाह, ठीक है, ये तुमने बोला गलत नहीं हुआ ना? ठीक है चलो जी। अच्छा, जब अल्लाह तबारक व तआला कुरान करीम में ये सूरत मोहम्मद की आयत है, ठीक है, उसमें अल्लाह फरमाता है वस्तगफिर लिज़म्बिका वलिल मुमिनीना वलिल मुमिनात, मग़फ़िरत चाहो मोमिनों की, मोमिनात की। तो इसमें मोमिनीन के लिए और मोमिनात का जो जिक्र आया है, क्या इसके अंदर सहाबा किराम शामिल नहीं है? शामिल है, जाहिर सी बात है शामिल है, जाहिर सी बात। तो अल्लाह जब खुद फरमा रहा है कि इनकी गलतियों की, इनके गुनाहों की माफी मांगो, और जाहिर सी बात है जब अल्लाह ने अपने रसूल को हुक्म किया है तो अल्लाह के रसूल ने ये शामिल की होगी जी, हुजूर ने दुआ की होगी, ठीक है। तो हुजूर अलैहिस्सलाम की जो दुआ है, ये कुरान करीम की सूरत मोहम्मद की आयत है, ठीक है, आयत नंबर मुझे याद नहीं लेकिन सूरत मोहम्मद की आयत कंफर्म है। तो इस आयत के तहत ये मसला तो कंफर्म हो गया कि सहाबा किराम से जितनी भी गलतियां हुई हैं उन सारी गलतियों की माफी अल्लाह ताला अपनी तरफ से अता फरमाएगा, ठीक है, ये बात तो क्लियर हो गई। आप इस बात को तुम भी मानते हो कि मकसद की दुआ करो ना, बिल्कुल दुआ करो, अब अल्लाह ने माफ कर दिया ये भी है। तुमने दुआ, अच्छा चलो, जब अल्लाह खुद फरमा रहा है, जब अल्लाह खुद ही फरमा रहा है कि इनकी मगफिरत मांगो, ठीक है, और जिनकी मगफिरत अल्लाह के रसूल मांगे, वो भी मोमिनीन की, मोमिनात की, तो क्या वो मोमिनीन मोमिनात जो अल्लाह के रसूल पर ईमान लाए और अल्लाह के रसूल पर ईमान की हालत में ही फौत हुए, तो क्या अल्लाह ताला उनकी मगफिरत नहीं फरमाएगा तुम्हारे साथ? अच्छा, तो एक और हदीस है
जो हदीस तो सुनो 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 मेरी बात सुनो, पहले कुरान होता है, हदीस का जिक्र बाद में है। ना इसी से रिलेटिव है ना कि क्या लेके बताओ? मैंने अगर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बोले अगर मैंने हक में भी फैसला कर दिया है इस शख्स के और वो गलत है, अपनी चर्ब जुबानी के उससे फैसला अपने हक में करवा लिया उसने, तो भी वो आपका टुकड़ा ही लेके जा रहा है अपने घर। दोबारा बोलना चर्म जुबानी, अपनी चर्ब जुबानी पे उसने अपने हक में फैसला करवा भी लिया मुझसे, तब भी वो आपका टुकड़ा ही लेके जा रहा है अपने घर। अच्छा यहाँ आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम अगर हक में फैसला भी कर दें जाहिर को देख के, तब भी अल्लाह ताला उसको छोड़ेगा नहीं। समझ रहे हैं? तो तुम मेरे को ये बताओ ना, इतनी सारी कंट्रोवर्सी का तुम्हारा मकसद क्या है? मेरे को पहले ये बताओ। ये एक ही हदीस नहीं है, आप क्या कह रहे हैं? ये मिदम नामी जो गुलाम था। सुनो सुनो, हदीसों की तुम बात कर रहे हो ना, समझे? अभी अगर हदीसों की बात करेंगे समझे बाबू जी, तो हदीसें तो खैर बहुत सारी हैं। जिन हदीसों को अगर तुम पढ़ोगे तो हो सकता है तुम मौलाली को जहन्नम ही बोल लोगे, तुम्हारा कोई भरोसा नहीं बोल लोगे जी, तुम हजरत उस्मान को जहन्नम ही बोल लोगे। मैं जो कह रहा हूँ, जो आप अपनी टिकट बांट रहे हैं आप सबको, इसकी गारंटी आपको किसने दी है? नहीं, मैं टिकट नहीं बांट रहा हूँ, मैं आप टिकट नहीं बांट रहा। टिकट दे रहे हैं सबको, अपनी कौम को, पूरी बरेलियत को और सहाबा इकराम जो सारे सहाबा हैं उन सबको, आप जो जन्नत के कंफर्म टिकट दे रहे हैं। पहली बात तो यार तुम मुझे बताओ, तुम बौखलाते क्यों यार? तुम बौखलाते क्यों? मैं बौखला नहीं, मैं अपनी बात पेश कर रहा हूँ ना। ये बौखलाने होता है कि पकड़ करे या ना रेडियो बजाए या ना बात में। पहली बात तो थोड़ा तसल्ली से बात करो, थोड़ा सब्र तहम्मुल रखो। सूरह अहज़ाब में एक मेरी बात सुने, सूरह अहज़ाब में है पहली, ठीक है, सूरह अहज़ाब में है कि ए ईमान वालो अल्लाह और उसके रसूल से आगे मत बढ़ो। ठीक है, जो अल्लाह के नबी गारंटी दे के कहें 10 सहाबा को, वो आपको काफी नहीं लग रही है? आप सबको गारंटी दे रहे हैं, तो आप ये आगे जो बढ़ रहे हैं वो किस बुनियाद पर बढ़ रहे हैं? ये तुमने कैसे बोल दिया कि हमें उस बात में तसल्ली नहीं हो रही है? मैंने इसलिए बोला कि आप गारंटी दे रहे हैं सारे सहाबा को और सारे बरेलवियों को। अच्छा ऐसा देखो, सुनो अभी यहाँ पर बाकी सबको काफिर समझ रहे हैं आप, देवबंदियों को, अहले हदीसों को, शियाओं को। प्लीज मेरे से बात करनी होती है, रेडियो मत चलाया करो। एक एक टॉपिक पर एक एक बात को तसल्ली मैं एक ही टॉपिक पर बात कर रहा हूँ और उसी टॉपिक को लेकर चल रहा हूँ। तुम मेरे को इतना बता दो, सहाबा किराम जितने भी हैं, ठीक है, हजरत अबू बकर से ले वो आखिरी सहाबी जो अल्लाह के रसूल के हालत इंतकाल से पहले भी ईमान लाया अल्लाह के रसूल पर, जो सहाबी है, जो इस्तिलाहन सहाबी है, जो शरअन सहाबी है, मुनाफिक नहीं, मुनाफिक की बात नहीं कर रहा, ठीक है? तो वो तमाम सहाबे किराम दायमी तौर पे जन्नती है कि नहीं है? मेरे को इतना बता दो। ये पूछ रहे हो तुम? जवाब दो, कुरान से दो, कुरान से पहले हदीस से जवाब दे देता हूँ आपको। बोलो नहीं, पहले कुरान से दे दो या तो ये बोल दो कुरान से नहीं। मैं हदीस से आपको जवाब दूंगा इंशाल्लाह। और पहले कुरान से उम्मीद है आप सब लोग खैरियत से होंगे। मैं आपके सामने चंद बातें अर्ज करना चाहता हूँ। पहले तो कुरान की आयत है, औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कोई बात नहीं है, या अय्युहल्लज़ीना आमनू ला तुक़द्दिमू बैना यदिल्लाहि व रसूलिही वत्तक़ुल्लाह इन्नल्लाहा समीउन अलीम। लोगों जो ईमान लाए अल्लाह और उसके रसूल से आगे न बढ़ो, अल्लाह से डरो, अल्लाह सुनने वाला और जानने वाला। जो आई हैं गलतियां बयान की गई हैं, इस आयत कहते हैं जो भी मुसलमान अल्लाह और उसके रसूल से आगे बढ़ता है वो मुजरिम है। अल्लाह ताला तो कुरान में कह रहा है जो हक कुछ दिन छुपाता है पहले बरेलवियों ने ये नारा लगाया हमारे साहब नबी जन्नती। लगाम डाली जाएगी। इससे रिलेटेड क्या अकीदा होना चाहिए हमारा कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने जन्नत की गारंटी दी है 10 असहाब को एक मजलिस में, और बाकी सहाबा को कुछ मौके पे गारंटी दी, लेकिन सारे असहाब को गारंटी जन्नत की नहीं कहीं पर नहीं है, हदीस में सिर्फ आप लोगों के लिए पढ़ने के लिए, पब्लिक के लिए नहीं है। लेकिन हम सबको कैसे कह सकते हैं कन्फर्म जन्नती हैं या नहीं है? तो इससे हम हदीस की तरफ जाते हैं और हदीस को देखते हैं, हदीस क्या कहती है इस मामले में। तो सही बुखारी की हदीस है 7003 नंबर, उस्मान बिन मज़ून एक बूढ़े सहाबी होते हैं जिनका इंतकाल हो जाता है। जिनका इंतकाल हो जाता है तो एक बूढ़ी खातून होती है, वो कहती हैं उस्मान के लिए तो जन्नत है, उस्मान के लिए तो जन्नत। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कहते हैं कि तुमको किसने बता दिया? तो आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उन्हें रोका कि तुमको किसने वो तो बता दिया गलत कि समझे इनके लिए मतलब, जन्नत है? लेकिन जो सही मतलब तो निकल रहा इससे है हमें उसका क्या क्या पता करेंगे आप? चलता है कि उसको भी छुपा लेंगे, आप छुपा लेंगे। हम अपनी तरफ से किसी को नहीं दे सकते, अल्लाह और उसका रसूल दे सकते हैं, लेकिन हम अपनी तरफ से किसी को जन्नत का टिकट नहीं दे सकते। और ये जो बरेलवी जमात है, ये जो जन्नत के टिकट बांट रहे हैं अपने आप को और सहाबा किराम को और सारे बरेलवी, तो ये किस बुनियाद पे बांट रहे हैं? क्या है इनका अकीदा?